Hello everyone. So the new chapter is starting today. The name is chapter 3, which is basically electric current. Electric current. So that is the name of chapter, electric current. Current means to say that there is a motion. Okay. And electric means to say that here some type of charge. So motion and charge. As you know that we have studied in previous chapter, that is what that current electricity, before current electricity we have studied electrostatics. In that case the velocity of charge is zero, means to say that charge in rest. Now in this chapter, charge will in motion means to say that it have velocity which is something different than zero. If the charge is like this, then what is the use of that charge? And why the charge in motion? What is the use of that charge? And how it is in motion? These all questions are discussed in this chapter. So initially you are seeing that diagram, you are seeing that uh, you can say that a picture I representing here. There is a different type of electric appliances. Okay. How it comes via some type of towers and you consider poles and towers. It is made somewhere and it comes to our houses. Now that appliances, even we are studying over the mobile, it is also the use of, or you can say that application of current electricity. In today life, the current electricity become the backbone of our system, backbone our house, backbone our system, or you can say that without current electricity we can't do anything. Even can't do anything means to say that there is a lot of things depend on it: fridge, washing machines, in kitchens, oven and all, and some you can say that televisions, or now these days e-rickshaw, e-vehicles are there. There is a lot of applications of electric current. So we can't imagine our life without electricity, or we can say that it is our backbone in our transportation also. Even medical industry also, there is a lot of electric devices, either it is x-ray machine or some other. These all are the basically applications of electrical appliances. So these are whatever we have discussed till now are the very important part of our life, either it is medical industry, transport industry, or our day-to-day life. Everything is there. In our houses we have seen that the bulb is there. That bulb is basically off, and now the second bulb is there. That bulb is basically on. So how can we say that the bulb is off and the bulb is on? On the basis of flow of charge, we can decide that bulb is on and bulb is off. Are you getting what I am trying to say? That on the basis of flow of charge, we can decide the bulb is on and the bulb is off. So how the flow of charge take place? Flow of charge take place in one word due to the potential difference. Due to the potential difference. If potential difference is there, then the conductor can transport a charge from one point to another point in this wire, in this towers also. If the origin point, or you can say that some factory is there which generate the charge, in other words NTPC, Thermal Power Corporation plant is there, that is basically the factory to manufacture or to provide the charge to these wires. These wires comes to our home, and home will run like this. These all are appliances which are our home appliances. These all are the home appliances. So in other words, we can say that
The potential difference is the reason to flow of charge. In one word, okay, whenever the body is connected to a conductor, if there is a potential difference, then that flow of charge, basically a continuous flow of charge. Okay, that is also the very interesting term, continuous flow of charge. Continuous flow of charge. तो कॉन्टीन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से ही हमें ये बल्ब ऑन दिख रहा है या ग्लो करता हुआ दिख रहा है, अदरवाइज़ ये ब्लिंकिंग भी कर सकता है. सो कॉन्टीन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज कब तक होगा? टिल द potential difference of these two bodies, या bodies where the potential difference or charge potential difference become equal. ये तब तक होता रहेगा, ठीक है ना. तो दैट बेसिकली द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. इन अदर वर्ड्स, जो हमने अब तक समझा वो कह सकते हैं द फ्लो ऑफ चार्ज is called an electric current. So that is our definition of electric current, basic definition. The flow of charge is called an electric current. If you see in this diagram, there is a cell is there. That cell, basically the providing positive and negative terminal. Positive terminal here. The positive will flow like this. The positive charge will go to the bulb and bulb start to glow. That glow is basically convert in the form of heat in the form of light. The light is basically the glow. So chemical energy inside the cell, is used or converted into the electrical energy by a wire, and the bulb is converted that electrical energy into heat energy as well as into light energy. So here will be the negative charge. It will work as a switch on and off. So it is basically on, then the circuit is complete, and negative charge will flow towards this way. So in this diagram you are easily able to see that basically this all phenomena is basically the transportation of energy, one energy converting into the another energy. Basically it is conservation law of energy, or you can say that transportation of energy is follow the conservation law of energy. That energy is travel in the form of electric currents you are seeing here, in the form of electric current. That electric current is basically the fundamental quantity. The SI unit of this is ampere. The SI unit of this is ampere and the symbol is A. So that is basically a fundamental quantity. What is electric current is a fundamental quantity, और उसकी जो SI यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, जिसको हम डिनोट करते हैं A से. तो इतना सब कुछ देखने के बाद हम एक और डेफिनेशन इसकी थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म में बना सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, जो दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं और जो काफ़ी ज़्यादा हमें यूज़ भी करनी है. वो इस तरीके से है, अगर हम इसका फॉर्मूला याद रख लें कि भी जो हमारा करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, उसका जो सिंबल है वो कैपिटल आई है. क्या है उसका सिंबल? कैपिटल आई है. तो जो आई जो होता है, ये जो चार्ज जा रहा है डिवाइडेड बाय टाइम. और अगर हम टाइम की वैल्यू यूनिट रख दें, कुछ 1 रख दें, कुछ 1 रख दें, तो हम कह सकते हैं द करंट आई फ्लोइंग इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन दैट यूनिट ऑफ टाइम. तो हम कह सकते हैं दूसरे भाषा में द टाइम ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस एन एरिया इज इक्वल टू द करंट थ्रू दैट एरिया. क्या है डेफिनेशन? ये देखते हैं. द टाइम बोले तो टी, यहाँ पर जो नीचे डिवाइड कर रहा है, द टाइम रेट फ्लो ऑफ
चार्ज एक्रॉस, जो वायर की बात कर रहे हैं हम, एक्रॉस जो वायर हमारा है एन एरिया, एरिया यहाँ पर वायर की थिकनेस भी हो सकती है, उसकी रेडियस और यू कैन से द डायमीटर भी हो सकती है, across an area is equal to the current through that area। ये हमारी एक और डेफिनेशन भी बन सकती है जो कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी पर बन सकती है। और इसमें आप देखेंगे इस फॉर्मूले में जो I करंट है वो बेसिकली 1 कॉलम चार्ज डिवाइड बाय 1 सेकेंड अगर हम ले लें तो कॉलम पर सेकेंड भी हम इसको कह सकते हैं। तो कॉलम पर सेकेंड भी इसकी एक यूनिट होती है एम्पियर के अलावा। तो एम्पियर तो होती है, तो साइंटिस्ट के नाम पे है। ओके, ये एम्पियर तो साइंटिस्ट के नाम पर है। बेसिकली इसकी जो एसआई यूनिट है वो हम ये भी लिख सकते हैं कॉलम सेकंड की पावर -1, या साइंटिस्ट के नाम पर इसका नोटेशन जो है वो एम्पियर है और जिसका सिंबल कैपिटल ए है। तो ये भी हमारी डेफिनेशन चल सकती है इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट को हम थोड़ा सा अलग अलग नाम से भी जानते हैं, अलग अलग इसके यूज में। एक होता है स्टडी करंट या स्टडी इलेक्ट्रिक करंट, ऐसा भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये एक स्टडी इलेक्ट्रिक करंट। वैसे तो करंट को जो है हम एसी और डीसी की फॉर्म में भी डिवाइड करते हैं। ओके, करंट को जो है हम एसी और डीसी की फॉर्म में भी डिवाइड करते हैं, वो अलग है, उसको हम अलग कैटेगरी बना के चलते हैं। यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं स्टडी करंट, स्टडी इलेक्ट्रिक करंट, ये अलग है, इसको हम किसी और फॉर्म में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इसमें ये समझने की स्टडी का मतलब हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा करंट जो जिसका फ्लो, जिसके ऐसा करंट जिसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो हो वो कांस्टेंट हो। ठीक है ना, वो टाइम के साथ वेरी ना करता हो, इसे कहते हैं स्टडी करंट। ओके, तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इफ़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ charge is constant and does not change with time, vary with time या does not change with time। इसमें लिख सकते हैं that current या the current is called steady current। ओके, स्टडी करंट। चलिए, तो ये तो रहा हमारा स्टडी करंट। इसके अलावा एक करंट और होता है जिसे हम इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। एक और करंट होता है हमारा जिसे हम इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं, उसे भी देख लेते हैं। इंस्टेंट का मतलब कोई स्लाइस, टाइम ऑफ स्लाइस। ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। सबका सिंबल वैसे आई है, बट इंस्टेंटेनियस करंट में हम बेसिकली क्या समझना चाहते हैं कि हमारा जो करंट है वो कुछ टाइम बाउंडेड चल रहा है, यानी कि उसको हमने लिमिट के अंदर बाउंड कर दिया है। हमने डेल्टा टी टाइम जो है वो टेंस टू ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो से बड़ा कोई भी टाइम स्लाइस हम ले सकते हैं, और उस समय हमने डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी कर दिया। तो डेल्टा टी बेसिकली हमने वो टाइम बाउंडेशन ले ली कि हमारा जो टाइम है कुछ ना कुछ टाइम के लिए हम उसको लेंगे, और इस तरीके से हम इंस्टेंटेनियस करंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं डी क्यू ओवर डी टी। तो हमने लिमिट बाउंडेड या इंस्टेंटेनियस करंट को इस तरीके से फॉर्म कर दिया। तो इंस्टेंटेनियस करंट को भी हम बेसिकली क्या करते हैं, हम एक सर्टेन टाइम इंटरवल में फ़्लो हो रहे चार्ज को हम इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। या हम कह सकते हैं
कि 5 मिनट में कितना करंट फ्लो हुआ। तो ये एक बेसिकली हमने, या दोपहर को 1 बजे से दोपहर के 3 बजे तक यानी 2 आवर्स में हमारा जो कितना करंट फ्लो हुआ, तो हम इसे इंस्टेंटेनियस करंट की उसमें डालते हैं। अब बात आती है जो सबसे इंटरेस्टिंग है इसमें, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ करंट से कहने का मतलब ये है कि देखो, करंट एक बेसिकली क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज को हम करंट की डायरेक्शन मान लेते हैं। वैसे ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं ऊपर मेंशन कर देता हूँ कि ये जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ये बात कोई वो नहीं है। बट यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन है, ठीक है ना, किसकी डायरेक्शन है? दी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव charges is taken as the direction of क्या? डायरेक्शन ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट, टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक वायर ले लूँ, ये एक वायर है, तो वायर में अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज जो हैं वो बेसिकली किस तरफ जा रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जा रहे हैं, तो यही हमारी क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ करंट होगी। और अगर ऐसा है तो फिर एक और बात इसमें नोटिस करने वाली है, वो ये है कि अगर पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जा रहे हैं, देन वी आर डेड श्योर कि नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन अपोजिट होगी। देन नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो नेगेटिव चार्ज जो हमारा जा रहा होगा, किस तरफ जा रहा होगा? नेगेटिव चार्ज जा रहा होगा इस तरफ। तो ये नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन होगी। तो बेसिकली ये हमारा, इसको हम नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव करंट भी कह देते हैं, ठीक है, नेगेटिव करंट भी कह देते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। या इसको हम बेसिकली इलेक्ट्रॉन करंट भी कह देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन करंट। और जो ऊपर हमने अभी लिखा है उसको हम कन्वेंशनल करंट कह देते हैं, या इलेक्ट्रिक करंट भी कह देते हैं। इसको कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रिक करंट की कैटेगरी में डालते हैं इसको। कन्वेंशनल करंट, या जो हम करंट बोलते हैं वो यही होता है। तो ये हमारे आई की डायरेक्शन होती है इस तरफ, ठीक है, इस तरीके से। और ये आई की नीचे वाली जो नेगेटिव वाली जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव डायरेक्शन मानी जाती है बेसिकली। तो ये इस तरीके से हम इसमें चल सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, इस बात को हमेशा दिमाग में डाल कर चलना। और इलेक्ट्रिक करंट क्या है? हम बेसिकली इसका एल्जेब्रिक सम करते हैं, ठीक है ना, इसका हम एल्जेब्रिक सम करते हैं। ये बात मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक करंट फॉलो एल्जेब्रिक सम, या डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन, या वेक्टर एडिशन के कोई भी लॉ फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन या लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से होता है। पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को हम ये मान कर चलते हैं। एक जो इसमें टर्म काफ़ी यूज़ करी जाती है, वो एक और टर्म है इसमें, वो होती है करंट डेंसिटी। क्या होती है वो? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, इसका जो सिंबल होता है वो जे होता है करंट डेंसिटी का, ठीक है। समझते हैं करंट डेंसिटी क्या होती है। तो जो जे है उसको अगर हम देखें, जे को बेसिकली, तो जे अगर हम
करंट डिवाइड बाय एरिया कर दें तो ये हमारी करंट डेंसिटी बन जाती है, ठीक है। और इसकी जो यूनिट बन जाती है वो यूनिट बन जाती है SI एम्पियर मीटर की पावर -2, ठीक है ना। इस तरीके से इसकी SI यूनिट बन जाती है। तो करंट पर यूनिट एरिया जो है, अच्छा एक बात और ध्यान रखना है इसमें, ये जो J है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, जबकि I जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। और यहाँ पर जो A है वो बेसिकली यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वो ये है कि जो करंट पर यूनिट एरिया हम ले रहे हैं उसमें हम ये इंटेंशनली लेते हैं कि जो करंट है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या नॉर्मल डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है ना। एरिया जो है वो नॉर्मल डायरेक्शन में होना चाहिए फ्लो ऑफ करंट की, ठीक है। ये बात इसमें नोटिस करने वाली है, ठीक है। चलिए, किसी भी पॉइंट पर ये क्या दिखाता है, करंट की डायरेक्शन भी दिखाता है, कौन, करंट डेंसिटी। तो इसमें लिख सकते हैं द करंट पर यूनिट एरिया। इसमें मैं आपको फिर वही बात मेंशन कर देता हूँ जो हम ले रहे हैं, हेल्ड, ये बात ध्यान रखना, हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ये बात इसमें नोटिस करने वाली है, ठीक है ना। ये बात जो है इसके अंदर ये आपको बहुत अच्छे से नोटिस करनी है कि हम जो डायरेक्शन लेंगे, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो हम बेसिकली उस पॉइंट पर हमें करंट की डायरेक्शन भी देगा वो, ठीक है ना। इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं, इसको एक तरफ कर देते हैं और अभी हम अपनी डेफिनेशन की तरफ कंसंट्रेट करते हैं। अभी हमारी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई है, तो डेफिनेशन जो है वो बेसिकली चल रही है हमारी, वो चलने देते हैं। तो डेफिनेशन हमारी क्या है, जो हमारी डेफिनेशन है, द करंट पर यूनिट एरिया, द करंट पर यूनिट एरिया वो जो होगा वो क्या होगा, जो हमने ब्रैकेट के अंदर किया, एट ए पॉइंट inside a conductor is defined as current density यानी कि J, करंट डेंसिटी यानी कि J एट दैट पॉइंट। ये हो गई हमारी डेफिनेशन किसकी, करंट डेंसिटी की। तो इसका फॉर्मूला हम पहले लिख चुके हैं, I/A होता है, यूनिट वगैरह हम डिस्कस कर लिए हैं। एक बात मैं आपको फिर बता दूं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये बात आप हमेशा याद रखना। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पर जो A है वो एक एरिया वेक्टर है। इसको थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं, J वेक्टर I/A वेक्टर, ये ऐसे भी आ सकता है, I = J वेक्टर डॉट A वेक्टर, ठीक है। इसमें डॉट प्रोडक्ट लगता है, तो I = JA cos थीटा, हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। ये भी इसके फॉर्मूले हैं करंट के साथ रिलेशन के, या डेंसिटी, करंट डेंसिटी के साथ रिलेशन के, ये फॉर्मूले हम इसको यूज़ कर सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो ये हमारी वेक्टर फॉर्म भी है बेसिकली, ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म करंट डेंसिटी की ये वेक्टर फॉर्म भी है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट। अगले टॉपिक में हम लेकर आएंगे मैकेनिज्म ऑफ फ्लो, करंट फ्लो, ठीक है ना। नेक्स्ट सेशन में जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो, ठीक है। अब मैं यहाँ आपको होमवर्क के लिए इसमें ऐड कर देता हूँ और आपको इसमें होमवर्क भी दे दूँगा, ठीक है, PDF फॉर्मेट में। ओके, थैंक यू वेरी मच।